السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے جی؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ کو پتہ ہے میں سعودی عرب جدہ سے بلاگ بناتا ہوں، اور ابھی میں گیا تھا کسی کام سے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ، اور یہاں پر جو ہے نا اس روڈ پہ تو اتنی ٹریفک نہیں ہوتی، پھر بھی دیکھیں کتنے بڑے بڑے روڈ ہیں۔ ابھی تو میں پل کے اوپر ہوں، ابھی میں اتروں گا نیچے، جو جدہ کی طرف روڈ جا رہا ہے، بائی پاس جسے کہتے ہیں، یہاں پر جو خدسری کہتے ہیں، بائی پاس کو جو ہے نا خدسری کہتے ہیں۔ ابھی یہ جو سامنے سے آنے والی گاڑیاں ہیں، یہ مدینے کی طرف جا رہی ہے، پھر بھی اور بھی روڈ نکلتے ہیں، مدینہ یہ وہ، اور ہم جس کی طرف جا رہے ہیں یہ جدہ بھی جا رہا ہے، مکہ بھی جا رہا ہے، یعنی ان دونوں روڈوں کو، یہ مکے کی طرف اور یہ مدینے کی طرف روڈ تو پھر بہت سارے نکلتے ہیں بیچ میں، ان کو یہاں پر جو ہے نا اس ایریے کو کہتے ہیں طریق حرمین، کیونکہ ایک خط جا رہا ہے طریق مکہ، ایک جا رہا ہے طریق مدینہ، ایک مدینے کی طرف روڈ جا رہا ہے اور یہ مکے کی طرف جا رہا ہے، تو ان دونوں کو ملا کے اس روڈ کو کہتے ہیں طریق حرمین۔ تو ہم جا رہے ہیں اس روڈ کی طرف، ہمیں تو جانا ہے اپنے گھر کی طرف، تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسپیڈ جو ہے نا 120 ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں تو ان کو گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے کو ایک حوصلہ ہو، تو لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے اور ویڈیو بنانی چاہیے، لوگ دیکھتے تو ہیں مگر لائک سبسکرائب نہیں کرتے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اوپر کیمرہ لگی ہوئی ہے، یہ کیمرہ جو ہے نا اگر ہاتھ میں موبائل ہوگی تو آٹومیٹک فائن آ جائے گا، اس حوالے سے کیمرہ لگی ہوئی، اور اس اوور اسپیڈ کی بھی لگی ہوتی ہے، چپے چپے پہ ہر جگہ پہ آپ موبائل بھی نہیں چلا سکتے، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہے۔ تو میں جدہ میں اوبر شمالیہ کی طرف ہوں، گیا تھا اوبر شمالیہ سے بھی تھوڑا آگے، تو اب ہم جائیں گے اوبر شمالیہ کی طرف، کیونکہ ہم اپنا روڈ پکڑتے ہیں اوبر شمالیہ کی طرف۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، یہ واٹر پارک بنا ہوا ہے، یہ اوبر شمالیہ میں واٹر پارک بہت مشہور ہے، اس کی بھائی فیس بہت ہے، سنا ہے 170، پتہ نہیں 70، 100 ادھر کدھر ہے، بہرحال نہ ہمارے جیسے آدمی کو ٹائم ہے اور نہ ہی بیچارے اجنبی جاتے ہیں۔ 70 ریال کا، 70 ریال تو 8-10 دن ہمارا خرچہ نکل جاتا ہے۔ جی اب ہم پہنچ گئے طریق سعود میں، اوبر شمالیہ کا روڈ طریق سعود بہت ہی مشہور روڈ ہے، بہت مشہور، جدہ سٹی علاقہ اوبر شمالیہ روڈ سعود، یہاں پر 90 اسپیڈ ہے، ہر جگہ پہ جو ہے نا بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کتنی اسپیڈ ہے، اس روڈ پر کتنی اسپیڈ ہے، روڈ اسپیڈ مقرر ہوتی ہے ہر روڈ کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کیمرہ بھی رکھی ہوتی ہے، آٹومیٹک فائن ہوگا، اگر جہاں پر 80 ہے تو 90 تک ہم چلا سکتے ہیں، کیونکہ پیر آگے پیچھے ہو جاتا ہے انسان کا، تو 10 پوائنٹیں جو ہے نا ایکسٹرا حکومت نے رکھی ہوئی ہے کہ انسان ہے آگے پیچھے پیر ہو جاتا ہے، 80 ہے تو 90 پر چلائیں گے، اگر 91 ہوگا نا تو آٹومیٹک فائن آ جائے گا۔
तो इस तरह है, अगर 100 है तो 110 पर चला सकते हैं, अगर 110 है तो 120 पर चला सकते हैं, अगर 120 है तो 130 पर चला सकते हैं। ये हर जगह पे कैमरा रखे होते हैं, हर जगह पे, चाहे छोटे से छोटा रोड हो, चाहे बड़े से बड़ा रोड हो। और ये सेफ्टी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रोडों पर काम चलता है तो सेफ्टी लगी होती है। और रात को ये जो सेफ्टी है ना, इधर बत्तियां इनके ऊपर चल रही है। अभी ये देखे, अभी इधर कौन जाएगा? न दिन को कोई जाएगा, न रात को कोई इधर जाएगा, न किसी आदमी का काम है जाना। फिर भी सेफ्टी लगी हुई है कि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पर काम चल रहा है। और रोड वहां लोग जो है ना, वहां पर जाने से थोड़ा सा गिरेज करें और एहतियात करें। ये देखें, रोड के ऊपर काम चल रहा है, सेफ्टी लगी हुई है माशाल्लाह। और रात को इनके ऊपर बत्तियां भी चल रही होती हैं, दूर से लोगों को पता चले कि यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ पर ऐसे है कि अगर काम भी चल रहा होता है ना, सेफ्टी लगी होती है, उसके अलावा रोड को छोड़ा होता है, यानी मुतबादल रास्ता दिया होता है कि यहाँ से गुजरना है। यहाँ पर इस तरह है सऊदी में। तो हम भी अभी करेंगे यू टर्न, क्योंकि हमें घर की तरफ जाना है। यार अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें हौसला मिले और मजीद हम वीडियोस बनाएं, ताकि आपको पता चले कि सऊदी अरब में किस तरह काम होता है, किस तरह रोड होते हैं, किस तरह निज़ाम होता है। जो हमारे देखने वाले हैं उनको पता चले और दिलचस्पी बढ़े, और जो सऊदी अरब आने वाले हैं उनको भी फायदा हो इससे। ये सारी गाड़ियां बड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर काम चल रहा है इसलिए। यहाँ पर हम आ गए हैं जी गलियों में। देखे कितने बड़े बड़े रोड है, कितनी बड़ी बड़ी गलियां हैं, गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, गाड़ियां भी जा रही हैं। और ये माशाल्लाह छोटी सी मस्जिद है। ये इसलिए है क्योंकि अभी इधर कुछ घर बन रहे हैं, जब बन जाएंगे, कॉलोनी हो जाएगी, लोगों के बैठने के हिसाब से फिर इस मस्जिद को जो है ना बड़ा करेंगे और अच्छी मस्जिद बनाएंगे। फिलहाल ये मस्जिद है। कितने बड़े बड़े रोड है यार, इतने हमारे बाईपास भी नहीं होते। पाकिस्तान के बाईपास भी इससे छोटे हैं। तो जी हमें जाना है अभी इस तरफ, लेफ्ट साइड पे। तो दोनों तरफ एहतियात करते हुए गुजारेंगे। अभी ये नए इलाके हैं, जब ये बन जाएंगे ना घर, अभी बहुत प्लाट खाली पड़े हैं, फिर ये इसको बंद कर देते हैं, रिसीव बना देते हैं, फिर दूर से यू टर्न करके आना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी ये नया रोड है, नया इलाका है। और हर जगह पे डब्बे रखे होते हैं, कचरा जो है ना उसी पे फेंक रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। हर कोई वहां पर ही कचरा फेंकेगा, जैसे ये देखे डब्बा पड़ा हुआ है, हर किसी ने आके यहाँ पर ही कचरा फेंकना है। तो दोस्तों इस तरह की मैं वीडियोस बनाता हूँ चलते फिरते। तो ये गाड़ी आ रही है, कहाँ जाना है इसको? मेरे ख्याल से इसको इधर जाना है। बिल्कुल स्लो हो गया था। ये जो है ना अंदर गलियों के रोड है, ये बाईपास नहीं है। यहाँ पर स्टेयरिंग लेफ्ट साइड पे है तो हमें राइट साइड पर चलना है। ये देख रहे हैं गाड़ियां आ रही है, माशाल्लाह जा रही हैं। ये अंदर गलियों के रोड है बड़े बड़े। तो दोबारा हमें लेफ्ट जाना है। वो दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, देखें यार, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। हमारे यहाँ इतनी अच्छी गाड़ियां हो पर लोग पता नहीं क्या करते थे। इधर गाड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है। ये नया इलाका है ना, इसलिए ये जो है ना कुछ खाली पड़े हुए हैं प्लाट। जो घर बने हुए हैं माशाल्लाह देखें बहुत खूबसूरत बने हुए हैं।
गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं दोनों तरफ। कितने रोड बड़े हैं, माशाल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज्यादातर यहाँ पर जो है ना बाहर ही गाड़ियां खड़ी होती है, सब बाहर गाड़ियां खड़ी होती है। कोई कोई अंदर भी खड़ी कर देता है अगर जगह है तो। यहाँ पर कोई किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा, चाहे कितना भी वक्त आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हो। हाँ, एक निजाम ये भी है सऊदी में कि अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल गंदी हो गई है, बाहर खड़ी खड़ी, टायर उसके बैठ गए हैं, फिर जो पुरानी गाड़ियां लेते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी वो लगा के दे अपना जो है ना स्टिकर लगा देते हैं कि भैया अगर आपको गाड़ी बेचनी है तो हमसे राब्ता करें। अगर देखते हैं कि ये इसको कोई चलाने वाला नहीं है, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन से पता चल जाता है ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसको मालिक चलाते नहीं है। गाड़ी की कंडीशन से पता चल जाता है, बैठ उसके टायर बैठ गए होते हैं और धूल चढ़ी हुई होती है। तो फिर उस पर जो पुराना गाड़ियां खरीदते हैं ना बेचने के लिए, उसको काट के इंजन अलग करते हैं, ये है वो है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गाड़ियों का बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मैं गया हूँ, गाड़ी का अगर कोई चीज पुरानी लेनी होती है या नई चीज नहीं मिल रही होती है तो वहां पर लोग जाते हैं कि यार सस्ता मिल जाएगा। ये देखें लोग मजदूर काम कर रहे हैं, घर बन रहे हैं। ये देखें ये ट्रालियां रखी होती है, जो भी कचरा होगा ना इनके अंदर डालेंगे ताकि बाहर कचरा नहीं आए। ये माशाल्लाह कुछ पाकिस्तानी है, कुछ सूडानी है। ये देखें कितनी अच्छी गाड़ी है मगर धूल में भरी हुई है, इसको चलाने वाले नहीं है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा था। ये लाल वाली गाड़ी जो थी ना मैंने आपको दिखाई। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी चैनल में वीडियोस पूरी देखा करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस लगेंगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गाड़ियों का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ पुरानी गाड़ियां कटती हैं, फिर वहां से लोग जो है ना लेके आते हैं, किसी का दरवाजा, किसी की टिकी, किसी का टायर, किसी का बटन। वो भी इंशाल्लाह मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा जब जाना होगा। तो दोस्तों करते हैं अपनी वीडियो का एंड, क्योंकि मैं अपने घर के पास पहुंच गया हूँ। ये हमारे घर के पास जो है ना पार्किंग यहाँ पर फ्री है। हमारे अभी बहुत गाड़ियां हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो मैदान पड़ा हुआ है हमारी नई कॉलोनी है, तो इसलिए यहाँ पर पार्क बनेगा, इसलिए ये छोड़ा हुआ है। अभी कुछ प्लाट रहते हैं जब मुकम्मल हो जाएंगे, अभी कुछ प्लाट बाकी है, तो यहाँ पर जो है ना पार्क बनेगा, इसलिए ये मैदान छोड़ा हुआ है। थोड़ा सा कचरा भी इसमें हो गया है। और यहाँ पर पानी अगर बारिश का इसमें खड़ा होता है ना तो बलदिया वाले आते हैं, हर रोज इसमें दवाई डालते हैं ताकि ये पानी खराब ना हो, इससे बदबू ना हो और इसमें मच्छर वगैरह ना हो। यहाँ पर भाई बहुत ख्याल रखा जाता है। तो हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में भी बल्दिया वालों को हिदायत दे। तो करते हैं भाई अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।